It is my honor to welcome you all here for the auspicious celebration of the divine appearance day of our Swamini, Srimati Radharani. Radhastami is a very special day for all the Gaudiya Vaishnavas, as by obtaining the mercy of Srimati Radharani, one can easily. Lord Krishna is the Supreme Personality of Godhead, and Sri Radha is Krishna's dearest consort and the manifestation of his Ladini Shakti, internal potency. Srimati Radharani's glorious birth occurred on the 8th day of the Sri Vrindavan. In Sri Vrindavan, Srimati Radharani is the greatest. In fact, she is the queen of Vrindavan. Lord Krishna enchants the world, but Sri Radha enchants even him. Therefore, she is the supreme goddess of all. Today, let's together honor her divine appearance. To begin our celebrations, I would like to invite some of the youngest members of our community to invoke some prayers. Swapriyam charanam kinkarim kuru Radham aravinda netram Smarami Radham madhurasmitasyam Vadami Radham karuna bharadram Tato mamanasudi pratirna kapi Vanchikalpatra. May I please invite Radhika Bharadwaj from Tumba to present a dance for the pleasure of Shri. Bengal in January 1959
near the Badatirtha of Chaitanya Mahaprabhu called Pichalda. Since his boyhood, Maharaj was very attached to Sri Chaitanya Mahaprabhu and Nityananda Prabhu and worshipped their lotus feet. He received his bachelor degree in economics from Calcutta University in 1980. His uncle, Shripad Madhusudan Maharaj, who was the temple commander of the Devananda Gaudiya Math, inspired him to dedicate his life to the service of Radha and Krishna. In 1981, Maharaj joined the temple full-time in Navadvip and took shelter of Srila Bhaktivedanta. Then moved to the Mathura temple in 1982 and has been staying in Mathura Vrindavan. He trained under the guidance of Srila Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj. Srila Narayan Goswami Maharaj gave special classes on Bhagavad Gita and the world stage. He is also the president of our society, International Gaudiya Vedanta Society in India. He has been coming to Australia since 1999. We are very, very fortunate to have him with us during this very auspicious occasion of Radhastami. Please make Srila Bhaktivedanta Van Maharaj feel welcome. Do you need a small table in front of you? No, it's okay. Just too much trouble. We should put it down. Yeah, just in front. Or not in front, just at an angle so it's almost like mine. Hare Krishna. और सब ठीक है? तदभक्ताय नमो नमः नमो महावदन्नाय प्रदायते दीनबन्धो जगत्पते गोपीश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्ते सत्यवत्यै नमो नमः श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम नेत्रं स्मरामि राधा मधुरस्मितस्य वदामि राधां करुणावरात्रं ततो मम पतकामि भवतु जगन्नाथ स्वामी नयन पता
धूपमञ्जरीकरार्चितपादपद्ममुष्टन्नभुजार्पितमस्तकाय हा मदकनकगौरी पदारविन्दं सनवयामि सनकैस्तव किं करिष्ये पदाब्जुस्तव विना वरदाश्रमेव नन्नात् कदापि समे किल देवी जाचे सखाय तमो नमस्तु नमस्तु नित्यं तस्सायते मम रसस्तु सत्तम् अभीरपल्ली पदिपुत्रकन्ता तस्साभिलषिता बलाश्रवारम् शिरोपचिन्ता मनीषोक्ति संस्थो मत्सन्तो दुर्दान्तो हये सुरस्तम् श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सबसे पहले मेरे गुरुपाद पद्म प्रातः स्मरणीय नित्य लीला प्रविष्ट स्वामी विष्णुपाद अष्टोत्तर सदस्य श्रीमद भक्ति वेदांत श्री वामन गोस्वामी महाराज एवं शिक्षा गुरु सन्यास गुरु नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर सदस्य श्रीमद भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण कमलों में अनंत करोड़ साष्टांग दंडवत ज्ञापन करते हैं। तत्पश्चात नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर सदस्य श्रीमद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज श्री गोविंद गोस्वामी महाराज श्री भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज श्री भक्ति ज्ञान भारती गोस्वामी महाराज एवं उपस्थित समस्त वैष्णव गोस्वामीवृंद मातृवृंद गौरगत सज्जनवृंद हरि कथा पिपासु श्रोतृवृंद सभियों के चरण कमलों में मेरा यथायथ दंडवत प्रणाम स्वीकार हूँ। आज बहुत सुंदर आनंद रहस्य की बात है। हम लोग सभी ने परात्पर परतत्व अखंड विश्व ब्रह्मांड के नायक ब्रह्मनंदन श्याम सुंदर की प्राण वल्लभा विश्वभानु राजनंदिनी श्रीमती राधा जी की आविर्भाव तिथि मना रहे हैं। गौड़ीय वैष्णव की एक ही इष्ट देव वह है श्रीमती राधा रानी, क्योंकि गौड़ीय शब्द की ही तात्पर्य है राधा जी की उपासना करने वाले की ही गौड़ीय कहा जाता है। भक्ति सिद्धांत श्री सरस्वती प्रभुपाद गौड़ीय शब्द की तात्पर्य व्याख्या करते हुए उन्होंने यह कहा, गौड़ीय कौन है? गौर सुंदर की आराधना करने वाले भी गौड़ीय कहा जाता है। और वो गौर सुंदर कौन है? वह गौर सुंदर स्वयं राधा कृष्ण की ही
मिलित तनु कहा जाए। राधा कृष्ण एक ही स्वरूप, लीला रस आस्वादिते धरे दोई रूप। राधा कृष्ण एक ही स्वरूप है, किंतु लीला रस आस्वादन करने के लिए दो रूप में ही प्रकाशित हुए। एको अहम बहुश्यामी, उपनिषद वर्णन कर रहे हैं। स्वयं कृष्ण गुरु वृंदावन में अप्राकृत अप्रकट गुरु वृंदावन में एकदा एक समय की बात है, निभृत स्थान पर विराजमान थे। कृष्ण की इच्छा होने के साथ ही साथ सुंदर परिवेश प्रकट हुई। देखते देखते चारों तरफ ऐसे सुंदर रूप धारण किया, जमुना प्रवाहित होने लगे। कल 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 रूप में जमुना देवी प्रवाहित होने लगी। जल की धारा इतने सुंदर सुशीतल सुगंध वायु के द्वारा चारों दिशाओं को आमोदित करने लगे। कदम्ब तमाल आदि वृक्ष के सघन वनों के द्वारा सुसज्जित होने लगे। अहो ऐसे दिव्य अप्राकृत वृंदावन धाम प्रकाशित होने लगे। कृष्ण स्वयं ही जमुना की तट पर विराजमान रहे। जमुना की कलकल ध्वनि कृष्ण की और भी उद्दीपन करने लगे। कल कल कौन मुझे लेकर के आते हैं? ऐसे सुंदर सुरम्य प्रदेश में ऐसे कृष्ण विचार कर रहे थे। इतने समय कृष्ण के दाएं हाथ राइट हैंड स्टार्ट टू मूव, कंपीत होने लगे। कृष्ण के दाएं हाथ फटफड़ाने लगे, कंपन होने लगे। अहो देखते देखते सुंदर एक सुरम्य पुरुष प्रकट हुए। कल्प विदेशु हरि कथा, किसी कल्प में साक्षात सदाशिव कृष्ण के दाएं हाथ से प्रकट होकर के आगे खड़े हो गए। कल्प भेद से हरि कथा, किसी कल्प में कृष्ण के सीधे हाथ से साक्षात बलदेव प्रभु प्रकट हुए। बोलो श्री बलदेव प्रभु की। अहो थोड़ी बात कृष्ण के बाएं हाथ थोड़ा कंपन होने लगे। कृष्ण ने देखा कृष्ण के बाएं हाथ कंपन होने के साथ ही साथ सुंदर एक दिव्य रमणी, मानो 16 वर्षीय एक सुंदर रमणी प्रकट हुई, जिनकी चरण कमल के नख चंद्रमा से लेकर के उनकी मस्तक की केशदाम समूह इतने सुंदर सुचारू, इतने सुंदर था, शास्त्र व पवित्र भाषा के द्वारा वर्णन करना संभव नहीं। कवि के कवित्व भी जहां पर समाप्त हो जाता है, बात जहां पर रुद्ध हो जाता है, इसकी कहा जाता है अचिंत वस्तु। अचिंत करो जो भावा तंग स्वर्गे नद्यत प्रकृति परिवश अचिंत सलक्षणम। वह अचिंत ऐसी सुंदर रमणी जिसकी किसी प्रकार शब्द के द्वारा वर्णन करना संभव नहीं है, क्योंकि अपराकृत स्थान है, अपराकृत शब्द है। इस जगत में हम लोग जितने भी कथा बोलते हैं, कथा में प्राकृत भाव आ जाता है, काममय भाव आ जाता ही है,
क्योंकि भाषा की अभिव्यक्ति संभव नहीं है, क्योंकि वो अप्राकृत वस्तु, अप्राकृत बहु नहीं प्राकृत गोचर। अप्राकृत वस्तु के हम कैसे प्राकृत भाषा के द्वारा वर्णन कैसे करें? तथापि शास्त्र में वर्णन करते जा रहे हैं। वह सुंदरी 16 वर्षीय सुंदरी की नख कमल की इतनी सुंदर छटा, उनकी अंग की इतने सुंदर छटा चारी दिशा को आलोकित कर दिया, विकसित कर दिया। तप्त कांचन गौरांगी, तपे हुए सोने की भांति सुंदर अंग कांति के छटा चारी दिशा को आलोकित कर दिया। इतने सुंदर उनके मंद मुस्कान, अहो क्या वर्णन करें। इतने सुंदर उभरे हुए आंख, चक्षु दय, सुरम्य, इतने सुंदर रूप, अंग कांति, एक अंग ऐसे सुंदर सुकमा। इनके जघन देश से लेकर के सर्वत्र इतने सुठाम, इतने सुंदर, क्या वर्णन करें। स्मित हर्ष बस कृष्ण की कहा गया था है, आत्माराम अप्तकाम पुरुष कहा जाता है। यद्यपि आचार्य पाद ने आत्माराम और अप्तकाम की दूसरी व्याख्या भी कर चुके हैं। जो कृष्ण आत्माराम अप्तकाम, जिनकी समस्त प्रकार की कामना वासना पूर्ण हो चुका है, जिस स्वयं ही अपने आत्मा में ही रमे हुए हैं, डूबे हुए हैं, किसी वस्तु के प्रति जिनकी किसी प्रकार आसक्ति नहीं। किंतु देखो वह 16 वर्षीय सुंदर रमणी की सौंदर्य, माधुर्य, कमनीयता, लालित्य पूर्ण रूप दर्शन करके कृष्ण अपने आप को भूल गए। भगवंत तत्तम जजगमाद्यम प्रमेदि परमात्मा भगवान की शब्द थे। शास्त्र दर्शन में कहा गया एक ही परम पुरुष उनके त्रिविध रूप में प्रकाशित हो रहे हैं, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। ब्रह्म उनके अंग कांति कहा जाता है, परमात्मा सुपरसोल, जीवों की हृदय में कण कण रूप में, साक्षी रूप में विराजमान रहते हैं, अयं ही साक्षी। और भगवान सरस्वती पूर्ण भगवान, ऐश्वर्य समग्र विश्व जस श्री ज्ञान वैराग्य सन्न भगवती गना, षडैश्वर्य में परिपूर्ण भगवान, किसी प्रकार कमी नहीं है। किंतु वह रमणी को देखते ही स्वयं भगवान आत्मराम अप्तकाम होते हुए पर भी वह रमणी के पीछे दौड़ने लगा। जिस प्रकार एक कामी पुरुष एक कामिनी के पीछे दौड़ते रहते हैं, ठीक उसी प्रकार स्वयं भगवान लीलाधारी, लीला पुरुषोत्तम उनके पीछे पीछे दौड़ने लगे। वह रमणी भी ना जानी कौन सा भाव में विवाहित थे। हाव भाव आदि विंशति प्रकार अलंकार आदि के द्वारा मानो सुसज्जित थे। हाव भाव हेला किंचित एटसेट्रा, इस तरह भाव में विवाहित, उसी की स्पर्श करने के लिए स्वयं गोरखपति गोविंद दौड़ने लगे और वह रमणी भी आगे दौड़ने लगे। कभी ऊंची कभी नीची, मानो पर्वत शिखर के ऊपर चढ़ जाती, कभी पर्वत शिखर से नीचे ही उतर जाती। और वो ऐसे एक रमणीय, सुरम्य, रोमांचकर विषय
क्या वर्णन करें। अंत में कृष्ण वह रमणी को हाथ पकड़ करके पुनः हम वृंदावन में बंसी बट्टी नीचे जुगना की पुलिन में लेकर के आए। हमारे आचार्य पाद इसी की वर्णन कर रहे हैं। वो रमणी की नाम क्या है? कहते हैं अनुरागिन कृष्णा धावती जस्मात् इति राधा। क्या बोला? अनुरागेण, राग अत्यंत अनुराग के द्वारा स्वयं कृष्ण जिसके पीछे पीछे दौड़ते हैं, चलते हैं, इसलिए वो रमणी के नाम रखा क्या? राधा है। राग अनुरागेण, धा मीन्स धावत, धावत कृष्ण जिसके पीछे पीछे दौड़ते। बोलो राधा रानी की जय। इसलिए उनकी नाम हो गया क्या? राधा है। ऐसे परात्पर परतत्व वृंदावन श्याम सुंदर की सर्व शक्ति स्वरूपिणी राधा जी की आज हम जन्म उत्सव मना रहे हैं। यही राधा तत्व की दो शब्द के द्वारा मैं आप लोग के निकट प्रस्तुत करता हूं। कृष्ण पूर्ण शक्तिमान और राधा पूर्ण शक्ति। राधा पूर्ण शक्ति, कृष्ण पूर्ण शक्तिमान, दुई वस्तु भेद नहीं शास्त्र प्रमाण। राधा पूर्ण शक्ति, जितनी भी शक्तियां हैं समस्त शक्ति की उत्सव मूल जो सोर्स सम राधा जी प्रकट हुई। और कृष्ण पूर्ण शक्तिमान, शक्ति सत्यमतुर दयोर अभेद। शक्ति शक्तिमान में कोई भेद नहीं है, तथापि लीला रस साधन हो। यही शक्ति कभी मूर्त कभी अमूर्त रूप में विराजमान है। जब कृष्ण अकेला है तब वो शक्ति कृष्ण के अंदर में ही रहती है, उसी कहता है अमूर्त, अनमैनिफेस्ट। और जब कृष्ण इच्छा करते हैं मैं लीला करूं, तो उस समय जो मैंने वह इच्छा शक्ति प्रकट कर देती है साक्षात रूप में। ये कहते हैं लीलारस आस्वादिते धरे हुए। श्रीमती राधिका राधिका देवी कृष्णमयी प्रोक्ता राधिका पर देवता सर्वलक्ष्मी सन्मोहिनी। सन्मोहिनी परा देवी कही दोतमना परमा सुंदरी हिंगवा कृष्ण किड़ार बसती नगरी। एक एक शब्द की सुंदर रूप में व्याख्या किया हमारे चैतन्य चैतामृत कृष्णदास कविराज कृष्ण। देवी को ही दो तो माना परम सुंदरी हिंगवा कृष्ण किड़ार बसती नगरी। इतने सुंदरी है, इस जगत में कोई सुंदरी रमणी के साथ तो तुलना देना किसी प्रकार ही संभव नहीं है। इस जगत में सुंदरी रमणी किसको हम कहते हैं? मिस यूनिवर्स है, क्या कहते हैं? विश्व सुंदरी है। यहीं तक सीमित है बस। किंतु वो विश्व सुंदरी एक दिन बुढ़ी हो जाती कि नहीं जाती? बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बातें सही है कि नहीं है? सब हाथी, क्या हाथी, क्या बोला? हाथी। हाँ मैं भी एक दिन चलो मैं जो उसकी व्याख्या करता हूँ गजमुच्छन की लीला कथा वर्णन करता हूँ। तो हाथी और मगरमच्छर की
है मगर, अगर और मगर है? और हाथी है? अभी नहीं है। हाथी माने पहली मैं थी, सुंदरी थी, मैं सुंदर था, किंतु हम इसलिए कह रहे हैं भाई किसी कटाक्ष प्राप्त करने के लिए ही कर रहे हैं। किंतु इस समय जितने भी इस जगत में जितने भी सुंदर कहा जाए, विश्व सुंदरी कहा जाए, वह विश्व सुंदर कहा जाए, किंतु बुढ़ापा आएगा, आएगा कि नहीं है? जितने ही हम मेकअप कर ले, किंतु बुढ़ापा आएगा है? पहले हमारे यहाँ पर शान दे देते हैं, एक एक करके थोड़ा बाल सफेद हो जाता है, तब हम उखाड़ करके फेंक देते हैं। फिर जब धीरे धीरे और बढ़ जाते हैं तब क्या करें, आगे जाते तो हम क्या करते हैं, कलर करते, ड्राइंग करते। फिर आगे क्या करें है? फिर हम कब तक चले, एक एक करके सारी इंद्रियां अपने आप चले है। आंख की रश्मियां तेज जो है वो धीरे धीरे कम हो जाते हैं, पड़ जाते हैं। क्या पड़ जाते हैं वो? मोतियाबिंद पड़ दिखाई नहीं पड़ता, क्योंकि विधि के विधान है? हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु ये लोग भी अमर होने के लिए चाहते थे, किंतु नॉट पॉसिबल। रावण, कुंभकर्ण, जितने भी असुर चाहते थे अमर बन जाए, किंतु संभव नहीं, क्योंकि प्रकृति के नियम का हम उल्लंघन नहीं कर सकते। इस जगत के एक नियम है। हम इसलिए कह रहे हैं भाई देखो, अपराकृत चित्त जगत में जो हम वर्णन करते जा रहे हैं, और शास्त्र जिसको वर्णन किया है, देवी शब्द की व्याख्या करें, देवी कोई द्योतमाना परम सुंदरी, ऐसे सुंदरी है किसी के साथ तुलना देना संभव नहीं है। इस जगत में हम जितने भी तुलना दे सब विफल हो जाता है ना, मैचिंग नहीं होगा। कमल के साथ तुलना दे, आंख कैसे है, कमल नयन, क्या ये सत्य है, सच है? कमल तो एक दिन कुछ समय के बाद, कमल 2 दिन 3 दिन के बाद एक एक पंखुड़ियां क्या हो जाए, मुरझाएगी, झड़ जाएगी। तो कमल ने नहीं कहा, इसके आंख कमल के भांति संभव नहीं है। ये केवल कवि की कल्पना मात्र है, किंतु अपराकृत चित्त जगत में वो नित्य नवायमान है, और जो नित्य शाश्वत अयन, जीव के लिए भी कहा गया जैसे अजो नित्य शाश्वत, ठीक उसी प्रकार चित्त जगत में सभी के जो है शरीर कैसे है, चिन्मय शरीर है। इसलिए कृष्ण के लिए क्या कहा, ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारण। सच्चिदानंद विग्रह, सच्चित आनंदमय विग्रह है। सत माने सत्ता, चित माने ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, अपराकृत ज्ञान, आनंद पूर्ण रूप से केवल आनंद ही है, दुख नाम से कोई वस्तु नहीं है। आनंद आनंद ही, वही आनंद स्वरूपिणी श्रीमती राधा रानी की है। इसलिए कृष्ण के समस्त प्रकार की आनंद प्रदान करती है। सर्ववंश पूर्ति करे आराधने, अतएव राधिका नाम पुराने बखाने। गोविंद नंदिनी राधा गोविंद मोहिनी, गोविंद सर्वस्व सर्वकांता शिरोमणि।
गोविंद आनंदिनी, गोविंद के आनंद प्रदान करने वाला, स्वयं बंशीधारी, श्याम सुंदर, मदन मोहन। ऐसे मदन मोहन के कौन आनंद प्रदान करने वाले, समस्त जीवों की जो आनंद देने वाले, सैकड़ों कामदेव जिनकी रूप दर्शन करके मूर्छित हो जाते हैं, और वही गोविंद के कौन आनंद दे सकता है? बोली अकेली राधा, केवल एकमात्र राधा रानी। इसलिए राधा रानी के क्या नाम है? गोविंद, मदन मोहन, मोहिनी। कृष्ण के कहा गया मदन मोहन कहा गया, मदन के जो है मोहित कर सकते, और वही मदन मोहन के मोहित करने वाली कृष्ण के मोहित करते कौन है? अरे राधा। इसलिए राधा जी के एक नाम है क्या? मदन मोहन मोहिनी। बोलो मदन मोहन मोहिनी राधा रानी की जय। इसके तो बहुत सुंदर विस्तृत वर्णन है। गोविंद नंदिनी राधा गोविंद मोहिनी, गोविंद सर्वस्व, गोविंद के लिए सब कुछ दे चुके हैं। कृष्णमयी जहां जहां कुछ देखती है, कृष्ण छोड़ करके कुछ नहीं देखती है। इसमें उनकी आंख कैसी है? किस वर्ण की है? नीली वर्ण है, क्योंकि कृष्ण छोड़ करके कुछ दर्शन नहीं करती है। इसलिए कृष्णमयी, कृष्ण राधा अंतरे बाहिरे, जहां जहां नेत्र पड़े तहां कृष्ण पड़े। जहां पर उनकी दृष्टि जाती है सभी कृष्ण ही दर्शन करते हैं। इसी कहा जाता है महाभाव दशा काल। तो महाभाव स्वरूपिणी राधा ठाकुरानी, स्वयं महाभाव स्वरूपिणी राधा रानी ही है। सर्वकांति लक्ष्मीमयी, समस्त लक्ष्मी की मूल उत्स भी कहा जाता है। वैकुंठ में लक्ष्मी आदि, द्वारिका में महिषी आदि महिषियां, और वृंदावन में गोपियां, ये सब राधा जी प्रकट है। इसलिए राधा जी की चरण कमल की सभी अर्चन करती है। अनंत कोटि विष्णु लोक नम्र पद्मजार्चिते हिमाद्रिजा फूलो मजा अपार सिद्धि रिद्धि दिग्धि सत्पदांगुली नगे कदा करे ससियमान मुनिन्द्रविंद वंदिते विलपशोकहारिणी प्रसन्न वक्त्रं प्रजेति कुंज गोविलासी वयन्द्र भानु नंदिनी वयन्द्र सोनु संगते कदा करे ससियमान मदद मदादि यौवने प्रमोदमान मंद्रिते प्रियानुराग नंदिते कलाविलास प्रणिते अनन्न धन्न कुंज रक्ष काम केलि गोविते कदा नमी श्रीमान नागटाक्ष अशेष हाव भाव धीर धीर हार भूषिते प्रभुत शांतम कुंभ 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 सुसरि प्रशस्त मान हास्य पूर्ण पूर्ण सौख्य सागरे कदाकनिष्य श्रीमा कृपा कटाक्ष भाज मृणाल बाल बल्लरी प्ररंग रंग लोलते लताग्रलास्य लोल नील लोचना I will not take too much time because we also managed another performance. तो हाँ, जिस कथा में आप लोग के मैं वर्णन कर रहा था, ये राधा कोई सामान्य स्त्री नहीं है, जिससे उत्सवादी बड़े बड़े देवता लोग कृष्ण की अत्यंत जो प्रियजन कितने स्तुति आदि करते जा रहे हैं। वंदे नंद प्रजस्थिनां पाद रेणु विष्णु जाशांधरी कपोदेव पुनाति भुवनत्रयम्।
आशामो चरण रेणु जुषामो साम वृंदावनी किंपि गुणमलतोषिदना जा दुस्तज सजना आर्य पतंच हित्वा भेद मुकुंद पदवी सूत्र भी विमृता। 6 श्लोकों के द्वारा उद्धव राधा जी की चरण कमल की भावकणा को प्राप्ति करने के लिए कैसे आकुति मिनती करते जा रहे हैं। हमारी प्रबोधानंद सरस्वती पाद इतना ही नहीं कह रहे हैं। जत्किंचित गुरुम विकट मुखम गष्टे समस्तीत सर्वानंद मुकुंद दलित लीलानुकूलम परम शास्त्री वस्फुटमितम निष्ठितम जानचया ब्रह्मादि सस्प्रियण मध्यम तया बंधते। रघुनाथ ब्रह्मादि बड़े बड़े देवता लोग भी राधा जी की चरण अंकित वृंदावन की धूल कणा प्राप्ति करने के लिए कितने कठोर तपस्या आदि कर रहे हैं, तथापि प्राप्ति नहीं है। ये राधा तत्व कोई साधारण वस्तु नहीं है। जिससे कदापि वसनंजन खलनत धन्नाथ धन्न पवनेन कितार्थमानि जगिंद्र दुर्गम गति मधुसूदनोपि तस्सात्मनो विश्वानुभूतिसो जत्किं कृष बहुस खोरु काकुवानि नित्यं पुरुष परस शिखंड मूले जस्सा कदार हृदे विश्वभानु जाया तत्कलि कुंजे भवनांगनम मार्जनीशा। जिस कुंज में निभृत निकुंज कुंज में राधा जी मानवती होकर के जब दरवाजा बंद कर देती है, शिखंड पुच्छधारी अर्थात मयूर पुच्छधारी करने वाले कृष्ण ब्रह्मा आदि देवता की प्रणम्य और कृष्ण उसी कुंज के द्वार पर आकर के नतमस्तक होकर के मंजरी सत्यों के निकट किस प्रकार काकुली मिनती प्रार्थना आदि करते रहेंगे। नित्यम परस पुरुष शिखंड मूले जस्सा कदार सुनिधि विश्वभान जाया तत्के कुंजे भवनांगन मार्जनीशन। उस कुंज की एक झाड़ू की सलाहकार होकर के मेरे जन्म हो जाए, मेरे जन्म सार्थक बन जाए। बोलो वृंदावन बिहारी बोली राधा तत्व इतने दुर्लभ कहा गया, नॉट सो इजी टू अटेन द लोटस फीट ऑफ श्रीमती राधिका। तथापि अम्ल की मन में एक ही लालसा है, ये चैतन्य महाप्रभु इस कलियुग में आकर के समस्त जीवों के आश्वासन दिया। क्यों ना आश्वासन है? क्या बोला? आशीर्वाद दिया, ब्लेसिंग दिया। महाप्रभु ने क्या कहा? मैं दूंगा अनार्पित चिराग करुणे अवतीर्ण करो समर्पयतु उन्नत उज्ज्वल संसभक्ति सिया हरि पुरट सुंदर गति कदम संदीपिता सदा हृदय कंदरे स्फुरतु वह शचि सचिनंदन गौर हरि। आज सभी जीवों की जो है निर्विचारी है, विदाउट डिस्क्रिमिनेशन सभी के प्रेम प्रदान कर रहे हैं। जारे दे के तारे देन प्रेम प्रदान। He did not discriminate who is qualified or who is unqualified. जारे दे के तारे देन प्रेम बिड़ाई। जिस प्रकार बादल घन बादल पर्वत की शिखर पर भी वर्षा करते, नदी में समुद्र में भूतल पर सर्वत्र वर्षा आदि कर रहे, उसी प्रकार सचिनंदन गौर हरि है उदार चित्त सभी को प्रेम प्रदान कर रहे। अनार्पित चरिम चिराग करुणे अवतीर्ण कलो समर्पयतु। स्वयं चैतन्य महाप्रभु अहो उसके स्वयं आस्वादन करके और रस का आस्वादन करके और
सबकी क्यों थोड़ी थोड़ी प्रदान कर आपनी आशा दी जीवेरे आशा दिला। चैतन्य महाप्रभु अपने आस्वादन किया और इतने टेस्टी है, डेलिशियस, जिसके शब्द के द्वारा वर्णन करना संभव नहीं है। जैसे उदार व्यक्ति होते हैं ना, उदार चित्त होते हैं, वो सब कुछ अपने को लुटा देते, अढ़ेल निर्विचार, विचार नहीं करके सबको दे दिया। इसलिए राधा प्रेम प्राप्ति करने के लिए एक ही उपाय है, यदि कोई सच्चिदानंद गौर हरि के चरण में समर्पित हो जाए। गौर प्रेमोर रसार नवे शेतरंग जीवा डूबी, श्री राधा माधव तरंग। गौर प्रेम डूब जाए बस। सच्चिदानंद गौर हरि के चरण में अपने को समर्पित कर दो। जथा जथा गौर पदार विंदे विंदे भोगात् पुण्य पुंजा तथा तथा सभी विधि अकस्मात् राधा पदाम्बुजो सुधाम्बुरासी। गौर सुंदर के चरण में बस, और कुछ करना नहीं है, कुछ करना नहीं है, कुछ पढ़ना नहीं है, कुछ लिखना नहीं है, केवल क्या करें? गौर संसा भज गौरांग जप गौरांग लभ गौरांगेर नाम। जे जन गौर भजे से है हमारा प्राण है। भज गौरांग जप गौरांग लभ गौरांगेर नाम। जे जन गौर भजे से है हमारे प्राण। केवल कुछ करना नहीं, गौर गौर गौर, भजने गौर, जपने गौर, सहने गौर, मरणे गौर, गौर गला रहा गौर बलिया जाऊ का जीवन कुछ न चाहिए। गौर सुंदर है मन रे कहा ना गौर है। इस कलियुग में और कोई राधा प्रेम गोपी प्रेम देने वाला नहीं है। इसी को अच्छी तरफ से आप लिख लीजिए। एकमात्र कौन देंगे? गौर सुंदर। आमा बिना ब्रज प्रेम नहीं अन्य दीते। चैतन्य महापुरुष स्वयं करें, एकमात्र गौर सुंदर ही वो प्रेम को प्रदान करें। वह प्रेम ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवताओं के लिए दुर्लभ कहा है। सच्चिदानंद गौर हरि आज राधा जी की जो महोत्सव हम मना रहे हैं, जो साक्षात कृष्ण की सर्वोत्तम प्रकार की जो इच्छा को पूरा करती है, वही राधा प्रेम मंजरी भावों की प्राप्ति करने के लिए उपाय एकमात्र गौर सुंदर के चरण में अपने को समर्पित कर दें। आराधितो नववनम वृंदावनस्ते नाराधितो नववनम वृंदावन एव गुरे। आराधितो द्विजसुत ब्रजनागस्ते नाराधितो द्विजसुत न तदेह कृष्ण। आराधितो नवन, जिस लोगों ने नवद्वीप धाम का आश्रय किया वो वृंदावन धाम प्राप्त करेंगे। जिन लोगों ने नवद्वीप धाम का आश्रय नहीं किया, कस्मिन कालेन कभी भी वो वृंदावन धाम को प्राप्त नहीं कर सकते। आराधितो द्विजसुत, जिन्हें सच्चिदानंद गौर हरि का आश्रय कर लिया, ब्रजगोपियों की जी पारकीय जो प्रेम धन वह कृष्ण के अति अवश्य ही प्राप्त करेंगे। और नाराधितो द्विजसुत, जिस लोगों ने सच्चिदानंद गौर हरि के आराधना नहीं किया, सच्चिदानंद गौर हरि की मंत्र जप नहीं किया, गौर मंत्र जप नहीं किया, गौर सुंदर की आराधना नहीं की, वो कभी संभव नहीं है। इसलिए आज गौर सुंदर की हम इसलिए महिमा करें, ये राधा तत्व राधा महिमा के जानने के लिए हम गौर सुंदर की ही आराधना करें। यदि गौरांग नहीं तो तबे की होई तो के मने धोरी तांबे। यदि गौरांग नहीं तो तबे की होई तो के मने धोरी तांबे। यदि नारायण नहीं तो
तबे की होई तो के मने धरिताम दे। है नारायण सरकार इस कीर्तन में करें, यदि चैतन्य महाप्रभु जगत में प्रकट नहीं होते, ये राधा जी की महिमा, लास्ट मिनट ऑफ डिवाइन लव ऑफ कृष्ण, कृष्ण के प्रति जो राधा जी में जो प्रेम, जिसको कहा जाता है मादनाथ को महाभाव की कथा, जगत में कौन प्रचार करता है? ये जो कहते हैं यदि गौरंग नहीं तो तबे की हुई तो केमने धरिताम दे। राधार महिमा प्रेम रस सीमा जगत जानते, प्रेम रस सीमा, व्हाट इज द लास्ट लिमिट, डिवाइन लव ऑफ कृष्ण। कृष्ण के प्रति राधा जी को अंतिम जो भाव कौन प्रकाश करते हैं? एकमात्र चैतन्य महाप्रभु पूर्व गोस्वामी पाद के द्वारा जगत में प्रचार करना है। और उसी कथा को हम कहते हैं, यदि श्री गुरुदेव श्री नारायण गोस्वामी महाराज यदि प्रकट नहीं होते, ऐसे सुंदर हरि कथा कौन श्रवण कराते? कहते हैं यदि नारायण नहीं तो तबे की हुई तो केमने धरिताम। गाओ पुनः पुनः नारायण गुण सरल होइया मन। गाओ पुनः पुनः नारायण गुण सरल होइया मन। पदकर्ता लिख रहे हैं, गाओ पुनः पुनः गौरांग गुण सरल होइया मन। रे मन, तुम सरल होकर के बार बार गौर सुंदर की चिंतन करो। किंतु हम कह रहे हैं, बोले गौर सुंदर के कौन जनाया है? बोले श्री गुरुदेव श्री नारायण गोस्वामी महाराज की जय। कम से कम हाथ पर यदि गुरुदेव नारायण गोस्वामी महाराज नहीं होते, ऐसे राधा जी की तत्व महिमा हम कहाँ समझ पाते? अप्रकट गुरु वृंदावन धाम में जो लीला, उस लीला को जगत में स्वयं कृष्ण जो मैं द्वारा प्रकट कर रहा हूं। राधा जी नित्य प्रयोग वृंदावन में गोलोक बिहारी कृष्ण के साथ नित्य विहार करते हैं, जिसको कहा जाता है रास लीला। सर्वोत्तम लीला रास लीला का है। जय जो जल रास सर्व रास सार, पार किया भवे जाता जजी प्रचार। वैकुंठादि नहीं जे सब लीला प्रचार, से सब लीला करियो आमी मोरे लागे जाते जाते चमत्कार। चेतन चिंता वैकुंठ अयोध्या द्वारका मथुरा में लीला नहीं है। कौन सा लीला? रास लीला। ये रासलीला जो है वैकुंठ में नहीं है, अयोध्या में भी नहीं है, और द्वारिकापुर में भी नहीं है। कहां पर है? मात्र गोलोक वृंदावन। उसी लीला को स्वयं कृष्ण जोग माया के द्वारा इस जगत में प्रकट करा। अनुग्रहाय भक्तानां मानुष देहमाश्रितम भजते तादृश क्रीड़ा जासुत्वा तत्परो भवेत्। जासुत्वा भवेत्, भवेत् शब्द की अर्थ विधिलिंग, आदेश जारी हो रहे। थोड़ा मैं एक शब्द की देर बताऊं। संस्कृत में विधिलिंग प्रयोग होता है कब भाई? जब आदेश जारी हो रहे, सुप्रीम कोर्ट के आदेश जारी हो गया, उसके ऊपर भी कोर्ट नहीं है? सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कोई कोर्ट है? जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, उसके ऊपर जब दे दिया आदेश जारी, मानना ही पड़ेगा। उसे विधि भविष्य शब्द विधि लेंगे। क्या करें? इस लीला को कोई श्रवण करे, कीर्तन करे, स्मरण करे और उसमें तन्मय हो जाए तो भगवान की प्राप्ति कर लेंगे। कहते अनुग्रहाय भक्तानां मानुषं देहमाश्रितम भजते तादृश क्रीड़ा जासुत्वा तत्परो भवेत्। उसमें केवल रख जाएगा
भजन किसको कहा जाता है? भजते सेव्यते ति भजनम, सेवा में नियुक्त है। इसे स्वयं भगवान नित्य गोलोक वृंदावन की जो लीलाएं जो है अपने जोगमाया को इस जगत में प्रकट करा। इस कथा प्रसंग की थोड़ी सी मैं बताता हूं। भगवान सर्वानंदमय भगवान नित्य गोलोक वृंदावन में आनंद रस में डूबे हुए हैं। आनंद आनंदमय प्रसाद, आनंदमय प्रसाद, आनंदमय भाषा, आनंदमय भगवान जिससे कोई निरानंद नहीं है, दुख नहीं है। किंतु भगवान विचार करने लगे इस संसार में जीव जिसको कहते हैं माइक जगत कहा जाता है, इस माइक जगत के क्या है? दुखमय जगत का दुख का है। इस जगत में सभी जीव दुखी है। कोई सुखी है? हाथ उठाइए। हाँ, एक सुखी है, एक पागल सुखी है। कौन सुखी है? पागल। पागल कहेंगे हम सुखी है, दुखी कहां है? ये वो पागल है? सभी दुखी है। हो सकता है कृष्ण प्रेम में पागल है इसलिए वो सुखी है, और वो ब्रेन डिसऑर्डर है इसलिए वो पागल। इस जगत में कोई सुखी नहीं है। दरिद्र कहे धनी सुखी, धनी कहे महाधनी सुखी, महाधनी कहे राजा सुखी, राजा कहे महाराजा सुखी, और महाराजा कहे इंद्र सुखी, इंद्र कहे ब्रह्मा सुखी, ब्रह्मा कहे कहीं नहीं सुखी। जो हरि भजे वही सुखी है। और राधे राधे। तो सुखी कौन है? जो राधा नाम जप करते, राधा नाम बड़ा सुखदा है। इसलिए गोलोक बिहारी चिंतन कर रहे हैं। संसार में सभी लोग सब दुखी है। ऐसे दुखी लोगों को उद्धार करने के लिए करें, मैं इस जगत में लीला प्रकट करता हूं। स्वयं कृष्ण राधा जी की बोली, हे राधे प्राण प्रियतमे, चलो हम लोग मर्त लोग में लीला को प्रकट करें। राधा जी कहती है जहां पर जमुना नहीं है, जहां पर गिरिराज गोवर्धन नहीं है, जहां पर गोपी गाय आदि नहीं है, वहां पर मैं नहीं जाऊंगा। कृष्ण कहने लगे, हे राधे मेरे जोग माया के द्वारा यही गोलोक वृंदावन की मैं ही स्वयं भौम जगत में प्रकट कर देता हूं। तब भी राधा जी कहने लगी, ठीक है मैं जाऊंगा, किंतु एक शर्त है, मैं पहली आपको दर्शन करूंगा, आपके बिना किसी वस्तु के मैं दर्शन नहीं। इसलिए राधा जी की जन्म कथा प्रसंग में हमारे आचार्य पाद वर्णन करते हैं, कल्प विलेषु हरि कथा। किसी कल्प में श्रीमती राधिका जब नित्य गोलोक वृंदावन धाम में, इस भौम वृंदावन में प्रकट होने लगे। कैसे प्रकट हुई? आंख बंद करके। देखो अभी 15 दिन पहले हम लोग क्या मनाया? कृष्ण के जन्म उत्सव मनाया। नंद को आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। हाथी दिलो, घोड़ा दिलो, आर दिलो। बहुत धूमधाम से नंद गोकुल में कृष्ण के जन्म उत्सव सभी लोग ने मनाया। आप लोग भी मनाया कि नहीं मनाया? खूब मनाया, लुटाया बहुत। हम तो हर साल अलग अलग स्थान पर रहा था। इस साल मैं दिल्ली में था, देखा बात कितने आनंद उत्सव होते हैं, आनंद उत्सव है। बढ़िया, क्या बात करना। चलो इसे कहते हैं नंद के आनंद भयो, नंद के पुत्र हुए, इन्हीं का है। क्या हुए? आनंद, आनंद कंद ब्रजराज कृष्ण। आनंद की
साक्षात मुक्तमान એટલે કે નંદ કે આનંદ ભયો જય કનૈયા લાલ की हाथी दिलो घोड़ा दिलो आर दिलो पाल है। बुढ़ों के क्या दिया, वृद्धों को क्या दिया, नंद महाराज ने पालकी दे दिया, पालकी बैठ कर दिया है। और जो जवान लड़का है ना, युवक है, उनको क्या दिया, घोड़े घोड़े दे दिए, घोड़े में बैठ करके है। हाथी दिलो और घोड़े आर दिलो पाल है। देखो बुढ़न के क्या दिया, खाने के क्या चीज दिया, लापसी, लापसी समझते हो हैं? लापसी उसको चिबाया नहीं जाता, उसके केवल चटाया जाता है, तुली है, क्यों उनके दांत नहीं है। और जवान को क्या दिया, नवजुवक के जो है अच्छे से कर्रा कर्रा लड्डू दे दिया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जो जैसे चाहे सब तो दान कर। चलो नंद गोकुल में तो बहुत सुंदर उत्सव तो मनाए लोग। इधर नारद ऋषि विचार करने लगे, ये भगवान जहां पर प्रकट होते हैं, भगवान की शक्ति तो कहीं नहीं है, क्योंकि शास्त्र में लिखा गया शक्ति शक्ति मतो अभेद, शक्ति शक्तिमान कोई भेद नहीं है। कृष्ण पूर्ण शक्तिमान, कृष्ण जहां पर यहां पर प्रकट हुए और उनकी शक्ति कहीं नहीं कहीं प्रकट हुई। इसलिए नारद ऋषि सर्वत्र भ्रमण करते करते आगे ब्रज में, रावेल में, बहुत सुंदर सुरम्य प्रदेश, मथुरा के समीपवर्ती जमुना की किनारा है, और जहां पर वृषभानु महाराज सुंदर एक प्रसाद, राज प्रसाद भी बने, जहां पर वृषभानु महाराज अपने सधर्मिणी कृतिका सुंदरी के साथ विराजमान है। देखो नारद ऋषि प्रातः काल में पधारे, और ठीक उसी दिन ही प्रातः काल में ब्रह्म मुहूर्त में वृषभानु महाराज जमुना में स्नान करने के लिए गए। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान की सत्र विधि का है। एक सूर्योदय के ऊपर एक पहले 1 घंटा 36 मिनट उसी कहा जाता है ब्रह्म मुहूर्त का। उस ब्रह्म मुहूर्त में वृषभानु महाराज स्नान कर रहे थे, जमुना की जल स्थिर हो गई। जमुना की जल इतनी सुंदर रूप धारण कर लिया, अहो मानो जमुना की जल में ना जाने किसने कुमकुम अगुरु चंदन चतुर सम के मिश्रण कर दिए। अहो जमुना की जल इतनी सुंदर सुगंध, जमुना की चारी तरफ अहो अनेक प्रकार पुष्प आदि अपने आप विकसित हो गए, खिल गए। जमुना के दोनों उपकूल में टू साइड्स ऑफ द बैंक ऑफ जमुना, और अनेक वृक्ष आदि इतने सघन होकर हो गए, अनेक प्रकार के जो फलदान वृक्ष आदि प्रकट हो गए। मानो समस्त वृक्ष के डालियां जो है द ब्रांचेस ऑफ द ट्रीज, मानो भूमि के आलिंगन करें, चुंबन करें। अनेक प्रकार के पुष्प आदि जहां पर विकसित खिले हुए हैं, भ्रमर जहां पर गुंजन आदि का है, मधुमक्खी शहद को संग्रह आदि का है, कोयल कुहू कुहू रब के द्वारा चारी दिशा को मानो मुक्त कर दिया। मयूर मयूरी के का ध्वनि के द्वारा नृत्य आदि करने लगे। के का गुरुदेव कहते हैं, मानो मोर पुंगलिंग पुरुष मोर कहने लगे, कौन कृष्ण के जो है वशीभूत कर सकते हैं। कृष्ण एक मदमत्त हस्ती के भांति है, कृष्ण के कौन कृष्ण के कौन उनको वशीभूत कर सकते हैं। जैसे मदमत्त हस्ती, हाथी को कौन वशीभूत कर सकते, ऐसे मानो के शब्द की तरह
का शब्द के द्वारा मयूरी कहने लगी का शब्द करता अरे श्रीमती राधिका, मानो मयूरी कहने लगी अरे मोर सिट डाउन, बैठ जाओ, लंबी तुमने लेक्चर दे दिया बहुत समय तक। बोले कृष्ण रूपी मदमत्त हस्त की वशीभूत करने वाले एकमात्र कौन? श्रीमती राधिका। बोलो राधा रानी की जय। इसलिए मोर मयूरी क्या करते हैं? के का है इस सब। ऐसे सुंदर ब्रह्म मुहूर्त में वृषभानु महाराज जब यमुना में स्नान करने लगे, एक डुबकी लगाई, दूसरी डुबकी लगाई, तीसरी डुबकी लग करके ऊपर उठे, देखा यमुना की वक्षस्थल में, मध्यस्थल में सुंदर एक सतत परिवेष्टित कमल खिले हुए। उस कमल की अंतरकर्णिका में एक सुंदर नन्हे मुन्ने बालिका है प्रकटित हुई, जिनके शरीर पर कोई वस्त्र ही नहीं था, मानो केवल कमर में एक करधनी विराजमान। और वो बालिका क्या कर रही थी? अपने अंगूठा को ऐसे पकड़ करके सुस रही थी और कभी किलकिलारी मार रही थी, है आंख बंद रही। अहो विश्वभानु महाराज देखते ही स्तंभित हो गए, है? और विश्वभानु महाराज ने क्या की? उसी बालिका को अपने हाथ से उठाया, अपने वक्षस्थल पर। विश्वभानु गोधी नवससी लेके ललिता सखी गुण रंग विश्वभानु महाराज की हृदय मानो समुद्र के भांति दधी, विश्वभानु दधी नवससी लेके माने साक्षात नवीन चंद्रमा विश्वभानु महाराज हृदय रूपी समुद्र से ऐसे प्रकट हुए। विश्वभानु महाराज क्षणिक काल के लिए मानो स्तंभित हो गए, रोमांच कंपास हुए। विश्वभानु महाराज ऐसे सुंदर बालिका को लेकर के गृह में प्रत्यावर्तन किया, गृह में आए और अपने पत्नी कीर्तिदा सुंदरी के गोद में दी। कीर्तिदा जगत के समस्त कीर्ति के जो है, जस के जो है फैलाने वाली है, इसलिए कीर्तिदा कहा गया। अहो ठीक उसी समय नारद ऋषि पधारे रावेल में, याद रखें। इसी कल्प में राधा जी की प्राकट्य स्थान रावेल। किसी कल्प में श्रीमती राधिका विश्वभानु को बरसाने में प्रकट हुई, किसी कल्प में श्रीमती राधिका कमल से प्रकट हुई, पद्मजनी कहा जाता है। किसी कल्प में श्रीमती राधिका अग्नि से प्रकट हुई, किसी कल्प में श्रीमती राधिका बिंब से प्रकट हुई। बिंब से एक है, ये भी कथा भी है पुराण के ब्रह्म वैवर्त पुराण में, राधा हृदय ब्रह्मांड पुराण में है, ये भी वर्णन है। मैंने इंग्लिश में जो है इसको संग्रह करके लिखा। इफ यू हैव क्यूरियोसिटी यू कैन कलेक्ट दिस बुक। इस ग्रंथ में राधा जी की सारे बाल चरित्र लीला की कथा मैंने वर्णन किया। ब्रह्म वैवर्त पुराण, ब्रह्मांड पुराण, राधा हृदय ब्रह्मांड पुराण, अनेक पुराणों से संग्रह करके मैंने इस ग्रंथ को प्रकाशित किया। अनेक राधा जी के अनेक लीलाओं भी वर्णन किया। शायद अनेक लोगों की अभी तक भी पता नहीं है जे राधा जी कौन कौन असुर को मारा। हम सभी विदित है, जानते हैं जे कृष्ण अनेकों असुर को मारा बचपन में, है पुतना से लेकर के ब्रज में अनेकों जो है असुर को मारा है। पुतनावत, पुतना मोक्षण लीला कथा है, और सकटासुर, तिनावर्त, अनेकों जो है असुर के कृष्ण ने मारा। किंतु राधा जी ने कौन कौन असुर को मारा, इसके बारे में मैं भी संग्रह करके प्रस्तुत किया। इस ग्रंथ में लिखा है। बहुत सुंदर एक ग्रंथ है जिसके बहुत लोगों की अभी तक भी पता भी नहीं
मैं पूछता रहता हूं, बताओ कृष्ण के बारे में तो आप बताया, ये कृष्ण अनेक असुरों को मारा, राधा जी कौन से असुर को मारा? पता है कृष्ण जो मारा अपना शक्ति राधा जी की ही तरह ही मारा। अरे राधा जी किसको मारा, कौन कौन असुर के दमन किया, ये बात बताओ। इस ग्रंथ में प्रमाण के साथ, शास्त्र युक्ति के साथ है, और मैंने वर्णन किया। चलो राधा जी उस समय संत नारद ऋषि पधारे और नारद ऋषि आकर के वृषभानु महाराज के कहने लगे, हे वृषभानु महाराज, आपके घर में कोई संतान संतति जन्म लिया? वृषभानु महाराज चौंके, विचार करने लगे, ऐसे सुंदरी बालिका को मैं कैसे संत महात्मा के दिखा दूं? उन संत महात्मा कैसे हैं क्या पता है? इसलिए वृषभानु महाराज कहने लगे, हाँ एक बालक मुझे प्राप्ति हुई। इसलिए वृषभानु महाराज ने श्रीदाम को दिखाया, राधा जी के जो बड़े भाई श्रीदाम को दिखाया। नारद ऋषि ने कोई बालिका जन्म लिया। तब उस समय वृषभानु महाराज सरल चित्त थे, झूठ नहीं बोलते थे। वृषभानु महाराज ने कहा, एक सुंदर जो है पुत्री रत्न मुझे प्राप्ति हुई। क्या प्राप्ति हुई? पुत्री। बोले उनको दर्शन कराओ, इनको मैं आशीर्वाद दे करके मैं जाता हूं। वृषभानु महाराज विचार करने लगे, पुत्री तो मुझे प्राप्ति हुई, किंतु उनकी आंख बंद है। हो सके संत महात्मा की आशीर्वाद से आंख खुल जाए। इसलिए वृषभानु महाराज ने क्या कि बोले हाँ, राधा जी के दर्शन कराए और छोटी बालिका को, नन्हे छोटी बालिका को दर्शन करके वृषभानु महाराज स्तंभित हो गए। रागिनी शक्ति सर्वनी राधा जी के दर्शन से क्या हो जाता है? क्या वर्णन करें? वृषभानु महादेव नारद ऋषि स्तंभित हो गए। कुछ समय के बाद नारद ऋषि बोले, देखो तुम्हारे बालिका को मैं आशीर्वाद करता हूं, थोड़ा षष्ठी वाचन के सामग्री लेकर के आओ। क्या लेकर के आओ? षष्ठी वाचन की सामग्री है, जैसे चावल चाहिए, हल्दी चाहिए, कुमकुम आवट रोली है। वृषभानु महाराज अंदर महल में गए और सारे षष्ठी वाचन की सारी सामग्री एकत्रित करने के लिए, और राधा जी छोटी बालिका नारद जी के सामने विराजमान। अब उनके देखते नारद जी विचार करने क्या लगे, और देखते देखते जोग माया के द्वारा ललिता विशाखा अष्ट सखियां सारी तरफ प्रकट हुई, और देखते देखते राधा जी भी किशोरी रूप धारण कर, इतने सुंदर किशोरी रूप है। इतने समय ललिता देवी कहने लगी, हे मुनिवर नारद ऋषि, जल्दी जल्दी ही राधा जी की स्तुति कर लीजिए। उस समय नारद ऋषि भोजन जैसे जैसे हमारे पंडित जी भाई जी जैसे सुंदर रूप में मुनिंद्र बिंद वंदिते राधा कृपा कटाक्ष की स्तुति आदि करते हैं। और इसके पश्चात स्तुति हो गई, और इतने समय वृषभानु महाराज सारे सामग्री लेकर के जब पधारे, और देखते देखते सारी सखियां अंतर्ध्यान हो गए। ललिता के सारे अष्ट सखियां अंतर्ध्यान हो गए, दे डिसअपियर। और श्रीमती राधिका पुनः छोटी नन्ही मुन्नी बालिका की भांति जैसे पूर्ववत पहले जैसे अपने अंगूठा को पकड़ करके चूस रही थी, ठीक उसी प्रकार से। इसके पश्चात नारद ऋषि लोक रीति के अनुसार उनको षष्ठी वाचन कराया, टीका लगाया, आशीर्वाद दिया, और नारद ऋषि बिना वादन करते हुए ब्रज में सर्वत्र
विचरण करने लगे, जिससे हमारे आचार्य पाद लिखते हैं नारद मुनि बजाय बबिना राधिका नाम अमनि उदित है भक्त गीत है नाद ऋषि। इस प्रकार भाव में विवाहित होकर के सर्वत्र विचरण करने लगे। इसके पश्चात थोड़ी सी कथा करके मैं वक्तव्य के यहाँ पर समाप्त करता हूँ। अभी आप लोग की दूसरी कोई परफॉर्मेंस दिया रेडी है ना? है ओके, जस्ट 2 मिनट्स है। इधर नंद महाराज मन मन विचार करने लगे, जे मैंने भी सुना वृषभानु महाराज के कन्या रत्न प्राप्ति हुई, चलो हम जाते हैं वृषभानु महाराज से मिल करके आते हैं। क्योंकि वृषभानु महाराज और नंद महाराज के साथ एक घनिष्ठ मित्रता था। जहां जहां पर वृषभानु महाराज रहते थे, निकटवर्ती गांव में नंद महाराज रहते थे। नंद महाराज जहां जहां पर विराजमान रहते होते थे, वहीं पर वृषभानु महाराज भी उसी गांव में ही रहते, निकटवर्ती गांव में। नंद गोकुल में नंद महाराज रहने लगे और वृषभानु महाराज राविल में रहने। इसलिए परम मित्र होने के नाते नंद महाराज और मां जसोदा बाल गोपाल को लेकर के राविल में पधारे। परात्पर प्रदत्त संग भगवान गुरु बिहारी राधा जी को वचन दिया, हे राधे मैं तुमके वचन देता हूं, तुम मुझे ही देख करके मैं ही तुमको जगाई और मुझे देखकर तुम आंख खोलोगे, पहले मुझे ही दर्शन करोगे। देखो उसी दिन मां जसोदा और नंद महाराज गोपाल के लेकर के तो राविल में वृषभानु महाराज के घर में पधारे और राधा जी दूसरी कक्ष में शयन कर रही थी, आंख बंद कर। और इधर वृषभानु महाराज और मां कृतिका देवी नंद जसोदा के साथ वार्तालाप कर रहे और गोपाल जहां पर राधा जी विराजमान सोई हुई और वहीं पर जाकर के कानों में जाकर के कहने लगे, हे राधे 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 देखो मैं आ ही गए। बस कृष्ण कैसे सुंदर मधुर वचन के सुन करके राधा जी आंख खोली, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। पहली बार राधा जी कृष्ण के दर्शन और लोक रीति के अनुसार राधा जी रोने लगी और रोना सुनते ही वृषभानु महाराज और कृतिका सुंदरी जल्दी जल्दी कक्ष में आए। देखा आश्चर्य की बात, ये राधा जी आंख खुली है। अहो उस समय दोनों की हृदय द्रवीभूत हो गए और कहने लगे, हे नंद हे जसोदे, मैं सोचा था मैंने कोई अंधा पुत्री को मैं प्राप्ति थी, किंतु आप लोग महान हैं। हमारे घर में आने के साथ ही साथ देखो हमारी पुत्री की आंख खुल गई। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसके आगे की कथा हम दूसरे दिन वर्णन करेंगे, क्योंकि आज समय हो चुका है, 6 o'clock है। तो आप लोग के दूसरे प्रोग्राम भी है। ये बहुत सुंदर इसी प्रकार राधा की जन्म वृत्तांत आगे की कथा हम श्रवण करेंगे। राधा तत्व, राधा की जन्म महोत्सव एंड आज विशेष यह है राधा जी का हम अभिषेक भी कराएंगे, किंतु राधा जी के अभिषेक बिना राधा अष्टमी पुरानी होती है। कल्प भेद से हरि कथा, किसी कल्प में श्रीमती राधिका ब्रह्म मुहूर्त में प्रकट हुई। गर्ग संहिता के अनुसार श्रीमती राधिका दोपहर के समय प्रकट हुई। कल्प विदेश्वरी है। कभी भी ठाकुर जी के अभिषेक मनाए, उसमें कोई दोष नहीं है। शाम में मनाए, रात में मनाए, दिन में मनाए, तो अपराकृत जगत की है। इसलिए हम राधा जी के अभिषेक भी करेंगे, लेकिन राधा जी के अभिषेक बिना राधाष्टमी पुरानी है। बोलो राधा रानी की जय जय जय। आगे की कार्यक्रम आप प्रस्तुत करें। Thank you, Shripat Maharaj. Beautiful and very, very sweet stories of our Thakurani, Srimati Radharani.
We will now please invite the devotees from Brisbane to please present a dance with the pleasure of Srimati Radharani and the present devotees. कृष्णा, आज बहुत ही सुंदर दिवस है। आज राधा अष्टमी का शुभ पावन दिवस है। आज उस उपलक्ष्य में हम हमारे श्री गुरुदेव की असीम कृपा से और हमारे गुरुवर्गा की असीम कृपा से आज बहुत सौभाग्यशाली है कि यहाँ पर महाराज आशीर्वाद के लिए आते हैं। इस उपलक्ष्य में हमारे पूज्य श्री गुरुदेव और हमारे गुरुवर्ग की असीम कृपा से जो हमने सीखा है, हमारा जो संबंध अभिधेय और प्रयोजन है, वो क्या है? वो है हमारी स्वामिनी श्री राधा ठाकुरानी अपनी सखियों के साथ वृंदावन में जमुना के तट पर निकुंज में अभिसार के लिए आई हुई है और श्री श्याम सुंदर की इच्छा करती है। आज वो बड़ी बेचैन हो रही है, किंतु आज श्याम सुंदर को आने में बड़ी विलंब हो रही है। वन विहार का समय निकला जा रहा है, अभी थोड़ी देर में भोर हो जाएगी और नृत्य नाटिका में क्या होगा।
Haribo! Should I just stop it? Yeah, but then when you finish